Hello, hello everyone. So आज के today's lecture we will start with the chapter coordination compounds. सबसे पहले in this chapter we will study with what is the definition of coordination compound, what are the uses of coordination compounds, and we will study the theories like Werner, valence bond theory, crystal field theory. Then after that we will solve some questions based on Werner theory, and then we'll end up our lecture. तो coordination compounds क्या होते हैं? First we will write the definition. They are the complex compounds. They are nothing but they are the complex compounds in which the central metal atom is bounded by anions or neutral molecules. How? By sharing of electrons. Let's see with the example लेके समझते हैं. See, suppose we have the complex CONH3 6. First we will study coordination compounds. क्या होते हैं? Complex compound. Why they are complex? Because their formula name is CONH6. They are not like the normal compound. They are the big compounds, or we can say their formula is big, CONH6. Because the normal compound like simple compounds जो होते हैं O2, SO2, CO2, they are सिंपल कंपाउंड. बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो कोबाल्ट है, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ये किससे बॉन्ड बनाना है? इट्स बॉन्डेड बाय आइदर द एनायंस or neutral molecule. Like we can say that ammonia. What is the charge on ammonia? The charge on ammonia is 0. It means it is a neutral molecule, right? And it is bonded by sharing of electron. मतलब जो central metal atom है, this cobalt is a central metal atom, is bounded either by the anion or neutral molecule. Or how they form the bond? By sharing of electron. Like NH3, 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 NH3. So this is the definition of coordination compound. Let's take one more example of FeCN6. So what is FeCN6? In coordination compound, what is the definition? It is a complex compound in which the central metal atom, that is the iron, is bounded by either the anion or neutral molecule. In the first case, we have NH3 as neutral molecule. In second case, we have Cn. Here, what is the charge on Cn? -1. So anion. How they are bonded? By sharing of electron. So by these two examples, we can able to see the definition of coordination compound. Again I am repeating, they are the complex compound with the central metal atom is bounded by either the anions in this case or neutral molecule in this case. How? By sharing of electron. Now let's see the applications of this compound. Why? First question हमारा ये आता है कि why we are studying, इतने complex होने के बावजूद भी why we are studying these molecule? What is the reason behind studying these coordination compound? So what is the reason? See, रीजन इज दैट दे आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. सबसे पहला एग्जांपल है इसका क्लोरोफिल. ये क्वेश्चन नीट एज वेल एज जेईई मेंस में क्वेश्चंस आए हैं. ये पॉइंट इसके यूजेस. जो हमारा क्लोरोफिल होता है, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम. जो हमारा क्लोरोफिल होता है, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज दैट स्पीशीज वेयर द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. So how this chlorophyll is made up of? It is the coordination compound of magnesium. Next example, everyone know what is hemoglobin, and that hemoglobin, how it is made up of? It is the coordination compound of iron. And this coordination compound is also used in our medicinal chemistry, textile industry, and every other fields where we use this compound. So it is also the coordination compound of iron. One more example we can take, like this complex. This we'll study in further in our chapter in geometrical isomer. This complex PT-NH3-2Cl2, it is also known as cisplatin. It is used in anti-cancer. It is used as an anti-cancer drug. This cisplatin is used as an anti-cancer drug. So by these three uses, we can say that these coordination compounds are very important in our daily life. Okay, so let's move further. To study these coordination compounds की स्टडी के लिए काफी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी थी.
First is the wonder, then the valence bond, and the crystal field theory. To study these compounds, many scientists have given their theories, have given the theories such as first theory is the wonder theory, second is the valence wonder theory, second is the valence bond theory, third is the crystal field theory. ठीक है, अब नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वंडर थ्योरी कि हमारी वंडर थ्योरी क्या होती है. वंडर थ्योरी इज गिवन बाय द साइंटिस्ट एल्फ्रेड वंडर. इसने क्या करा था, ही टेक द coordination complex of cobalt and perform the experiment of that. He take COCl3 dot 6 NH3, 1 mole of COCl3 dot 6 NH3, and he reacts with AgNO3. He gets three results. One time he get 1 mole of AgCl, अगली बार he get 2 mole of AgCl, next time he get 3 mole of AgCl. And now how this is happening, how when we take the coordination complex of cobalt, how when react with silver nitrate, excess of silver nitrate, you can say, so how 1 mole of AgCl, 2 mole of AgCl and 3 mole of AgCl is coming. So let's see now suppose COCl3 डॉट 6 NH3. एज वी नो, हमें ये याद होना चाहिए कि मैक्सिमम coordination number we will study what is coordination, मतलब मैक्सिमम बॉन्ड द कोबाल्ट दैट कैन फॉर्म इज ओनली 6, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर मैक्सिमम 6 ही स्पीशीज रह सकती हैं. तो इफ इट इज गिविंग 1 मोल ऑफ AgCl, इट मींस अगर ये 1 मोल ऑफ AgCl है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, द स्पीशीज व्हिच आर आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, दे विल ओनली रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट, otherwise the remaining species will not going to react with the silver nitrate. तो हम ये ले लेते हैं, I have said कि 6 बॉन्ड रहेंगे. So what I can say, I can write like Cl2 NH4 and I can take one Cl out when I will react with the AgNO3, and remaining NH3 you can write outside also, and when this Cl will react with this AgNO3, it will give AgCl. Okay. What next complex I can say, I can write like this, when it will react with AgNO3, it will first species will give 1 mole of AgCl, इधर आपको 2 mole of AgCl मिल जाएंगे. 2 क्यों मिलेंगे, because two Cls are outside the coordination complex, and then when they react with the silver nitrate, they will give 2 mole of AgNO3, and here the silver nitrate is in an axis. जो silver nitrate है हमारा वो axis में है. अगला क्या possibility है complex की, ऐसा ही complex हो जाए. When I will react this with AgNO3, we will get 3 mole of AgCl. तो इससे ये पता लग रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग फॉर्म में है, कभी Cl, कभी एक Cl बाहर है, कभी 2 Cl बाहर है, कभी 3 Cl बाहर है. तो इसको सजेस्ट करते हुए ही गिव टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर इज द सेकेंडरी वैलेंसी. इसको जज करते हुए है ही गिव टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर इज सेकेंडरी वैलेंसी. अब इन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज में इसने काफ़ी चीज़ें देखी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है या फिर सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है, उसको हम आगे देखते हैं. पर इन कॉम्प्लेक्स से, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि विच इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड विच इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड. तो सबसे पहले हम लिखते हैं, एक मिनट आप इसको लिख लीजिए इतने पार्ट को.
तो अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज हमारी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या क्या होती हैं। तो अगर हम ये देखेंगे कि अगर इन इलेक्ट्रोड्स का अगर हम रेशियो देखें तो ये किस रेशियो में है, ये इलेक्ट्रोलाइट 1:1 में है। एनसीईआरटी में ऐसे रेशियोज दे रखे हैं 1:2 में, कलर भी दे रखे हैं, वो आपको याद नहीं रखने, 1:3 में है, राइट। तो अब हमें इसको देख के दो वैलेंसीज के बारे में स्टडी करनी है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ऐसी स्पीशीज विच आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, मतलब ऐसी स्पीशीज जो आयंस में हमारी कन्वर्ट हो जाए, दैट इज बेसिकली आर प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो नेगेटिव चार्ज, जैसे अगर मैं इसको आयंस में कन्वर्ट करूंगा 3+ एंड 3Cl-, सो ये क्या है बेसिकली हमारी नॉर्मली इट इज आयनाइजेबल, और ये किससे सेटिस्फाइड है, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ठीक है, जो आयंस में, जैसे ये आयंस में कन्वर्ट हो गए तो इसकी 3 हो जाएगी, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ओके, और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, इट इज बेसिकली ऐसी स्पीशीज जो नॉन आयनाइजेबल है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अभी जो कॉम्प्लेक्स के अंदर NH3 है, दे आर नॉन आयोनाइजेबल और दे आर सेटिस्फाइड आइदर बाय, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होंगे, दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और यू कैन से नेगेटिव आयंस, या तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पार्ट है ना वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे CuNH6 है, तो जो 6 अमोनिया है दे आर नथिंग बट द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब हम सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वैलेंसी की कैलकुलेशन देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी की कैलकुलेट करने के लिए इट इज आल्सो इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसको कभी कभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम भी कह देते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास के कॉम्प्लेक्स है CONH3 5Cl, और आगे कुछ। अब इसकी मुझे कोबाल्ट का अगर प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो 0-1 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज, मतलब अमोनिया पे चार्ज 0 है, Cl में -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो 1 क्या आ गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमें पूछे NiCO4 निकल पे x, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। मतलब बेसिकली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना है। अब नेक्स्ट आगे होता है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। इसके बाद मैं आपको एक जेईई मेंस का क्वेश्चन इस पे कराऊंगा। सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है कि सेंट्रल मेटल से कितनी स्पीशीज जुड़ी है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये मेरा सेंट्रल मेटल है, इससे कितनी स्पीशीज जुड़ी है, दैट इज बेसिकली सेकेंडरी वैलेंस। जैसे CONH6 इससे 6 अमोनिया जुड़े तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हुई 6। जैसे अब ये है K4FeCN6, अब इसमें बहुत से जने सोचते हैं कि बाहर वाले पोटेशियम्स को ले, या नहीं, ये बाहर वाले जो आयंस होते हैं इनको कहते हैं काउंटर आयंस। ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी में कोई भी रोल नहीं प्ले करते हैं, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 स्पीशीज जुड़े हैं तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। तो ऐसे हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद एक जेईई मेन का क्वेश्चन लेते हैं। दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE Main 2023. So let's solve that question. This is the question. It is asked in JEE Mains 2023. The question is the primary and secondary valencies of
cobalt respectively in CO NH3 5Cl Cl2 R ऑप्शंस है हमारे फर्स्ट ऑप्शन इज 3 and 5 second option is 2 and 6 third option is 2 and 8 and fourth option is 3 and 6 तो अब इसमें हमें चेक करना है क्वेश्चन देखो बहुत इजी है प्राइमरी वैलेंसी आप ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल लो सेंट्रल मेटल की x अमोनिया पे चार्ज 0 Cl पे -1 बाहर 2 Cl -2 इक्वल टू 0 x -3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 सेकेंडरी वैलेंसी कितने होंगे कोबाल्ट से कितनी स्पीशीज जुड़ी है कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स के बाहर वालों को नहीं लेना है तो 5 अमोनिया प्लस 1 Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6 दिस इज ऑप्शन नंबर 4 अभी हमने बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले स्टडी करी और हम देख लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी करी फर्स्ट वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि दे आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन व्हिच द सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्डेड बाय anions or neutral molecule how by sharing of electron why we study because the chlorophyll is the coordination compound of magnesium hemoglobin is the coordination compound of iron और जो cisplatin है ये कॉम्प्लेक्स है इट इज द एंटी कैंसर ड्रग अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए काफी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी लाइक वर्नर थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फिर हमने वर्नर थ्योरी का देखा कि इसने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया फिर उसको एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से करा तो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं अभी अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहे हैं कि 1 Cl बाहर था तो 1 मोल AgCl बनेगा 2 Cl बाहर थे तो 2 मोल AgCl बनेगा 3 Cl बाहर थे तो 3 मोल AgCl बन जाएगा फिर हमने देखा प्राइमरी वैलेंसी ऐसी स्पीशीज जो आयनाइजेबल है और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड है और सेकेंडरी वैलेंसीज ऐसी हैं जो नॉन आयनाइजेबल है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड है और फिर हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे कि प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल से निकाल सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली इट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल का मतलब सेंट्रल मेटल से कितने ग्रुप जुड़े हैं पर कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आई होप आपको समझ आया होगा थैंक्स